Good morning, students, class 4th. So, we are just finished the chapter last class. So, today I will just go to mark your answer and complete your assessment exercise. Okay. So, let's go. Let's on. We are just complete this chapter. Okay. So, start. Come out your page number 25 and then let's start your exercise. Okay, I was just telling you have to tick the mark. Okay, now so first question is a tick the correct answer. So first is Durga Puja is the main festival of, there is three options there, A West Bengal, B Haryana and C Kerala. So answer is West Bengal because Durga Puja is the main festival of West Bengal. Okay, now the second question is Chandigarh is the capital of, Chandigarh किसकी कैपिटल है? तो इस आंसर विल बी नॉट अ यूपी नॉट अ बिहार, इट्स अ पंजाब. ओके, क्योंकि बिहार की कैपिटल पटना है एंड यूपी की कैपिटल, वी आर जस्ट लिविंग इन ऑन यूपी स्टेट, सो वी हैव अ कैपिटल ऑफ लखनऊ, बट चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की कैपिटल है. ओके, so the answer is Punjab. Means that is second का A. Now is a third option. Chhat is an important festival of. Chhat is an important festival of what? Chhat कहाँ का important festival है? It's a Delhi? No. It's a West Bengal? No. It's a Bihar. Is a Bihar main festival, so tick the Bihar, yeah, option C, third का C. Okay, now fourth, soil which is good for crops. Soil which is good for crops, किस टाइप की soil crops के लिए बेस्ट होती है? It's a sandy, alluvial और plain. तो आंसर is alluvial. Okay, come to the fifth point, that is the Kaziranga Wildlife Sanctuary of Assam in the home of. In the home of, where is the tiger, lion or one-horned rhinoceros? So that is the one-horned rhinoceros is right answer. In this your book is I have a finding your chapter. Okay, I think you should be find your own yourself in from your book. Okay, let's write T for true statement of F for false statement. Okay, so let's start the true and false. So it's a complete MCQ is complete. If you know about that, I will just repeat then again. Okay, now so true and false. Brahmaputra is also called the Tangpo Tibet. So Tangpo is Tibet is right or wrong? That is right. Okay, it's a first answer is right, यानी कि true. तो T लिख लीजिए. The national capital territories is located in the national northern plains. तो that will be answer is true. Okay, the national capital territories is located in northern plains. ये right answer है. Haryana has rich deposits of coal and iron ore. So answer is false. Okay, so answer is false. Haryana has rich deposit and coal and iron ore. So that will be the iron or coal. It's a very important thing from the Haryana. Clear? Next is fourth. The Hooghly and Padma are tributaries of the river Brahmaputra. तो ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज करती हैं हुगली और पद्मा. मीन्स अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूँ, ट्रिब्यूटरीज मीन्स इज अ हेल्प ऑफ द रिवर्स. जो हेल्पर्स रिवर होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं. दैट इज बी आंसर इज फॉल्स. ठीक है. रिवर सतलुज ज्वाइन रिवर यमुना इन पाकिस्तान. इट्स व्हाट आंसर? इट्स फॉल्स. नो. ओके, रिवर सतलुज ज्वाइन रिवर यमुना इन पाकिस्तान. नो. ठीक है, यमुना पाकिस्तान की तरफ होती ही नहीं है. चलिए, ये हो गया आपका MCQ एंड ट्रू फॉल्स. एंड देन मूव ऑन राइट शॉर्ट आंसर. सो शॉर्ट आंसर, द विच स्टेट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम. कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम
डिपॉजिट्स होता है, दैट विल बी आंसर इज असम. आई विल जस्ट राइट डाउन असम, बट यू हैव टू राइट द आंसर. द असम हैज़ स्टेट, असम हैज़, यहाँ से असम हैज़ स्टेट यूज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम. ओके, ये आपका शॉर्ट आंसर होगा. सेकेंड, व्हाट इज एल्यूविलियम सॉइल गुड फॉर? एल्यूवियल सॉइल किस क्रॉप के लिए गुड होती है? तो दैट विल बी एल्यूवियल सॉइल किसके लिए गुड होती है? इट्स अ क्रॉप्स के लिए एल्यूवियल सॉइल बहुत बेस्ट होती है. तो आंसर इज क्रॉप्स इज, यहाँ से आप वर्ड को रिमूव करेंगे एंड देन क्रॉप इज एल्यूवियल सॉइल गुड फॉर. ठीक है, या आप ऐसे आंसर लिखते हो, सॉरी, एल्यूवियल सॉइल गुड फॉर क्रॉप्स. ठीक, ये आपका सेकेंड आंसर होगा. थर्ड, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? इज यूपी. तो आप आंसर लिखोगे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी स्टेट. ठीक है, विच की जगह पे क्या लिखेंगे? यूपी. क्लियर? नेक्स्ट, नेम द टू स्टेट लोकेटेड इन द सतलुज बेसिन. तो सतलुज बेसिन की 2 स्टेट्स के नाम आपको राइट डाउन करने हैं. सो फर्स्ट इज आंसर इज सतलुज बेसिन में पंजाब स्टेट आता है और हरियाणा. तो योर आंसर विल बी स्टार्ट फ्रॉम द, तो लिखेंगे द पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स लोकेटेड इन द सतलुज बेसिन. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एलोकेटेड इन असम. असम में जो सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ, उसे क्या बोला जाता है? तो दैट विल बी अ नेम ऑफ काजीरंगा. तो आपका आंसर होगा काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन असम. क्लियर? ये हो गया आपके शॉर्ट आंसर. अब आ जाते हैं लॉन्ग में. सो लॉन्ग कह सकते हो या जो भी आप कह सकते हो. आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन. दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन सो फर्टाइल? क्या है जो नॉर्दर्न प्लेन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है? तो इसका आंसर पेज नंबर 20 पे है. तो कम टू द पेज नंबर 20. अभी हम 26 में, तो आप पेज नंबर 20 पे आइए. तो आंसर आपका यहाँ देखिए, लास्ट में आपका पैरा के सबसे लास्ट लाइन में स्टार्ट होगा. दी रिवर ब्रिंग विद देम फाइन सॉइल कॉल्ड द silt or the alluvial soil for the very fertile and very good for the growing crop. These rivers thus make the northern plains rich and fertile. यहाँ तक आपका आंसर फिनिश हो जाता है. यहाँ पे लगा लीजिए टिक. लॉन्ग वन. क्लियर? दी से फर्टाइल तक. ठीक. नेक्स्ट, नेम सम इम्पॉर्टेंट सिटीज दैट लाई इन गंगा बेसिन. तो गंगा बेसिन के किनारे पे कौन कौन सी सिटी उनके नेम लिखने. तो ये ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं बनेगा, but you have to write down the Kanpur, Allahabad, Varanasi. Only use this type of the cities. Then Kanpur, Allahabad, Varanasi is important. Is यहाँ सकते हैं some important cities that lie in the Ganga basin. ठीक, ये आपका आंसर एक बन जाएगा. थोड़ा सा शॉर्ट होगा बट आंसर इनफ है इतना. नेक्स्ट, द थर्ड इज व्हाट इज मीन बाय डेल्टा. डेल्टा कैसे कहते हैं? नेम द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. तो पेज नंबर 22 पे इसका आंसर आपको फाइंड हो जाएगा. कम टू द पेज नंबर 22. ये देखिए ऊपर के सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में जहाँ मानसरोवर लिखा हुआ है, दैट इज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर टुगेदर फ्रॉम लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरवन. दिस इज योर लॉन्ग थर्ड. ओके, दिस इज योर लॉन्ग थर्ड. Tick. Okay, next, name the main crops and festival of Haryana, Bihar and Uttar Pradesh. आपको मेन क्रॉप्स और कुछ मेन फेस्टिवल लिखने हैं हरियाणा, बिहार और यूपी के. चाहे तो आप अपनी बुक से राइट डाउन कर सकते हो. यू हैव टू योर सेल्फ, बट आई थिंक जो मैंने आंसर आपके लिए फाइंड किया है वो कुछ इस तरीके से है. वीट. तो आंसर इज दैट विल बी, अगर आप इसको देखेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे मैं इस पेज नंबर को आपको फाइंड करवा देता हूँ कि होली दिवाली ईद इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ हरियाणा, बिहार और यूपी.
and some question answer is there, page number 22. You have to come in the page number 22. तो यहाँ पर आप देख सकते हो द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब, गुरु पर्व, बैसाखी एंड लोहरी एंड दिवाली. द मेन लैंग्वेज आर हिंदी एंड पंजाबी. तो यहाँ पे पंजाब के लिए ये हो गया. फिर हरियाणा में के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हरियाणा के लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है just some main crops and are wheat. The main crops of Haryana is wheat, rice, cotton and sugar cane. क्लियर. और अगर इसमें आप अगर थोड़ा फेस्टिवल के बारे में बात करो तो फेस्टिवल इनकी वही है, होली, दिवाली, जस्ट लाइक. एंड देन यूपी के बारे में आप लिखोगे तो यूपी के बारे में भी आप इसी तरह से लिख सकते हो कि यूपी इज़ सिचुएटेड इन द गंगा रिवर. तो यहाँ पे मेन क्रॉप्स क्या हैं? वीट, राइस, शुगर केन, पल्स एंड ऑयल सीड्स इज द मेन क्रॉप्स. एंड दैट इज द मेन इनके फेस्टिवल हैं. देयर इज़ अ दिवाली, होली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस. ओके, दिवाली, होली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर मेनली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल. तो ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग कोई आंसर हो जाएगा. यहाँ से आप लॉन्ग आपका क्वेश्चन नंबर दैट विल बी फोर्थ. तो फोर्थ क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आपका यहाँ तक होगा. फिर इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लेंदी करता हुआ है. बट यू हैव टू राइट डाउन योर क्रॉप्स एंड मेन फेस्टिवल इन दिस स्टेज. ओके. At the last of this chapter, question is name the language spoken in Punjab, Tripura and West Bengal. उन लैंग्वेजेस के नेम लिखने जो पंजाब, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में बोली जाती हैं. तो पंजाब में पंजाबी, यू हैव टू राइट डाउन द पंजाब इन पंजाबी. त्रिपुरा इज बंगाली एंड काबुरक. देन वेस्ट बंगाल यू हैव टू, या तो आप इसको वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी बंगाली ही है. ओके, बंगाली यहाँ पर भी लिखा जा सकता है. और अगर इफ़ यू हैव अ फाइंड द आंसर इन योर बुक तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पंजाब, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल. तो पंजाब में पंजाबी आप लिख सकते हो. वेस्ट बंगाल की जो मेन लैंग्वेज स्पोकन हो रही है वो ये है that are main people of the state speak the Bangla, English also widely spoken. ठीक है. and then Tripura is Bengali and Kakoborok of the two main spoken language. ठीक है. आप ये आंसर भी फाइंड कर सकते हो या लिख सकते हो. क्लियर. so class 4, this is your complete the assessment and I hope so you have to write down in your notebook. okay beta, is a finish your chapter 3rd and come to the I think you should be complete your test. जो कमिंग अप टेस्ट हैं उसके लिए आप प्रिपेयर करिए. यही आपका सिलेबस भी होगा 1 2 3 जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं. ठीक है.